اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے حضرت صفیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اور خاندان کی ناراضگی کا واقعہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہلے سلام بن مشکمل قرظہ سے ہوئی تھی۔ سلام نے طلاق دی تو کنانہ بن عبد الحقیق کے نکاح میں آئیں، جو ابو رافع تاجر حجاز اور رئیس خیبر کا بھتیجا تھا۔ کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور بھائی بھی کام آئے اور خود بھی گرفتار ہوئے۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لونڈی کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، لیکن ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ آپ نے رئیسہ بنو نذیر بنو قریظہ کو دہیہ کو دے دیا، وہ تو صرف آپ کے لیے سزاوار ہے۔ مقصود یہ تھا کہ رئیسہ عرب کے ساتھ عام عورتوں کا سا برتاؤ مناسب نہیں، چنانچہ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صحبہ میں رسم عروسی ادا کی اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور اپنی ابا سے ان پر پردہ کیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہوگی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور واقعات میں حج کا سفر ہے، جو انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام محاصرہ میں، جو سن 35 ہجری میں ہوا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بے حد مدد کی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضروریات زندگی مسدود کر دی گئی اور ان کے مقام پر پہرا بٹھا دیا گیا تو وہ خود کھچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چلی۔ غلام ساتھ تھا۔ اشتراک کی نظر پڑی تو انہوں نے آ کر کھچر کو مارنا شروع کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ کو ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، میں واپس جاتی ہوں، تم کھچر کو چھوڑ دو۔ گھر واپس آئیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمات پر مامور کیا۔ وہ ان کے مکان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا اور پانی لے کر جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ مدینہ میں سب سے پہلے موجود مذہبی اثر سوخ کے مالک جہود کے مذہبی وقار میں خاطرخواہ کمی آنے لگی۔ بت پرست مشرقوں میں تسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی جہودیت سکڑ گئی۔ دوسری طرف مکہ کے قریشی بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے سرداروں کا انتقام لینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ گویا مشرقین مکہ اور یہود مدینہ دونوں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے راستے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بار قریش مکہ کے کہنے پر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا اور چال یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم بھی 3 علماء کو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسلام سمجھائیں۔ اگر ہمارے علماء نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منظور فرمایا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تلواریں باندھ کر آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کے استحصال کے لیے ان کے باغات تک جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ بالآخر بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر
मालो असबाब ऊँटों पर ले जा सकें। ले जाने दें तो हम मदीना से निकल जाएंगे। चनाचा जिला वतनी पर मजबूर होने वालों में सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद हई बिन अख्तब, सलाम बिन अब्बिल हकीक, कनाया बिन अल रब्बी के अलावा वो चंद दीगर लोग भी बनु नज़ीर से खैबर की तरफ चले गए। वहाँ लोगों ने उनका इस कदर एहतराम किया कि खैबर का सरदार तस्लीम कर लिया। खैबर पहुंचकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद ने आपका निकाह कनाना बिन अब्बिल हकीक से कर दिया। कनाना खैबर के सरदार अबू राफे का भतीजा था और खुद भी खैबर के किला कमूस का हाकिम था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद हई बिन अख्तब जब खैबर आए तो यहाँ इस्लाम के खिलाफ फैसला कुन मार्का लड़ने की तैयारियां शुरू की। आसपास के कबाइल को इसके लिए तैयार किया, यहाँ तक कि एक बड़ा लश्कर जंग के लिए तैयार कर लिया। यहूद ने कबीला गतफान को भी लालच देकर अपने साथ मिला लिया। ऐना बिन हसन फजारी ने चंद अफराद के साथ मिलकर ये शरारत की कि मकाम जिक्र चिरागा का नाम है, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनियाँ चर रही थी, उन पर हमला कर दिया। ऊँटनियों की हिफाजत पर ममूर अबू ज़र के बेटे को कत्ल कर दिया, उनकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया। 20 ऊँटनियों को साथ भगा कर ले गए। हज़रत सलमा बिन अल अकू रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस हमले का इल्म हुआ तो उन्होंने तेज़ रफ्तारी से पैदल दौड़कर हमला आवारों को जा लिया। अभी वो एक जगह पर ऊँटनियों को पानी पिला रहे थे। सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन पर इतनी फुर्ती से तीर बरसाए के तमाम हमला आवर जख्मी होकर फरार हो गए। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तमाम ऊँटनियाँ वापस छुड़ा लाई। उसके 3 दिन बाद गज़वाए खैबर हुआ। मदीना के शुमाल मगरब में खैबर नामी एक शहर आबाद था। ये नहायत ज़रखेज़ मकाम था। यहाँ पर यहूदियों ने चंद किले बना रखे थे। यहूद दिगर कबाइल को अपने साथ मिलाकर मदीना पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने उस मकसद के लिए एक अरसे से जंगी असला जमा कर रखा था। कबीला बनु गतफान और कबीला बनु असद को निसफ खजूरों के बगात का लालच देकर अपने साथ मिला चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी तैयारियों और असला जमा करने का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सबा बिन अरफ्ता गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हाकिम मदीना मुकर्रर फरमाया और खुद 1400 अफराद पर मुश्तमिल सहाबा कराम के काफिले के हमरा खैबर की तरफ रवाना हुए। उधर रईस अल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उब्बी ने किसी तरीके से यहूदियों को खुफिया तौर पर मुसलमानों की रवानगी की इत्तला दे दी। पहले तो यहूद ने खुले मैदान में लड़ने का फैसला किया और एक मैदान में निकल आए। उनका ख्याल ये था कि मुसलमानों को खैबर पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे। चंद दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम रजी में फौजें उतारी। खैम मस्तूरात और बारबरदारी का सामान यहाँ उतार दिया गया, जबकि असल लश्कर ने खैबर का रुख किया। मकाम सहबा पर पहुंचकर नमाज असर अदा की गई और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ सत्तू नोश किए। रात होते होते लश्कर खैबर के करीब पहुंच गया और इमारतें नजर आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकने का हुक्म दिया और यहाँ रुक कर दुआ फरमाई। दूसरे दिन खैबर पहुंचे। यहूद ऐसी बुज़दिल कौम थी, जब उन्होंने अहले इस्लाम की जंगी तैयारियां देखी तो खुले मैदान के बजाय किला बंद होकर लड़ने लगे। खैबर की आबादी 2 हिस्सों में बनी हुई थी। एक हिस्से में 5 किले थे। इनमें से मशहूर 3 किलों पर मुश्तमिल इलाका नजात कहलाता था और बाकिया 2 किलों पर मुश्तमिल इलाका शाख के नाम से मशहूर था। खैबर की आबादी का दूसरा हिस्सा कतीबा कहलाता था। इसमें सिर्फ 3 किले थे। किला कमूस ये बनु नज़ीर के खानदान अब्बुल हकीक का किला था। यहूदियों ने अपनी खवातीन और बच्चे किला कमूस और नजात में, जबकि दिगर आसमानों असला वगैरह किला नाम में महफूज कर लिया और हर किले पर तीर अंदाज तैनात कर दिए। मुसलमानों ने 5 किलों को एक एक करके फतह किया, जिसमें 50 मुजाहिदीन जख्मी और 1 शहीद हुए। किला कमूस सबसे बुनियादी और बड़ा किला था, जो एक पहाड़ी पर बना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किले को फतह करने के लिए चंद सहाबा कराम को भेजा, लेकिन ये फतह ना हुआ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, कल मैं इससे इल्म दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और इसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। वह शिकस्त खाने वाला और भागने वाला नहीं है। खुदा उसके हाथों से फतह अता करेगा। ये सुनकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख्वाहिश करने लगे कि काश ये सादत उन्हें नसीब हो।
दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तलब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि इन्हें आँख की तकलीफ़ है। इसके बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे मुबारक उनकी आँख पर लगाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आँख की तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म होगी। दूसरे दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मैदान में उतरे तो यहूदियों के मशहूर पहलवान मरहब का भाई हारिस मुसलमानों पर हमला आवर हुआ, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसे एक ही वार में कत्ल कर दिया और उसके साथी भाग गए। उसके बाद मरहब रिजस जंगी अशार पढ़ता हुआ मैदान में उतरा। उसने ज़िर्रा और खुद पहना हुआ था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी जवाब में रिजस पढ़ा और मरहब के सर पर इतने ज़ोर से तलवार का वार किया जिससे खुद 2 टुकड़े हो गई और मरहब 2 दड़ों में कट गया। उसकी हलाकत के बाद बाकी यहूदी खौफज़दा होकर किले में जा घुसे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किले का दरवाजे को दोनों हाथों से पूरा जोर से उखाड़ लिया। उसके बाद आपने इस दरवाजे को किला कमूस के आगे वाले गड़े पर रखा ताकि इस्लामी फौज घोड़ों समेत किले में दाखिल हो सके। इस्लामी फौज दाखिल हुई। यहूदी सहम गए। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और किला कमूस भी फतह हो गया। इस पूरे गज़वे में 93 यहूदी हलाक हुए जबकि 15 मुसलमान शहादत के आला मकाम पर फायज हुए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का असली नाम ज़ैनब था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम सफ़िया रख दिया। ये यहूदियों के कबीला बनु नज़ीर के सरदार आज़म हई बिन अख्तब की बेटी हैं और इनकी माँ का नाम ज़िरा बिनते स्मुएल है। यह ख़ानदान बनी इसराइल में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनका शौहर कनाना बिन अब्दिल हकीक भी बनु नज़ीर का रईस आज़म था जो जंग खैबर में कत्ल हो गया। मुहर्रम 8 हिजरी में जब खैबर को मुसलमानों ने फतह कर लिया, तमाम असीराने जंग गिरफ्तार करके इकट्ठा जमा किए गए तो इस वक्त हज़रत दहिया बिन खलीफा कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बारगाह रसालत में हाजिर हुए और एक लोंडी तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी पसंद से इन कैदियों में से कोई लोंडी ले लो। उन्होंने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ले लिया, मगर एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सफ़िया बनु करीज़ा और बनु नज़ीर की शहज़ादी हैं। उनके ख़ानदानी अज़ाज़ का तकाज़ा है कि आप उनको अपनी अज़वाज मुतहरात में शामिल फरमा लें। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ले लिया और उनके बदले में उन्हें एक दूसरी लौंडी अता फरमा दी। फिर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आज़ाद फरमाकर उनसे निकाह फरमा लिया और जंग खैबर से वापसी में 3 दिनों तक मंजिल सहबा में उनको अपने खेमे के अंदर अपनी कुर्बत से सरफराज फरमाया और दावत वलीमा में खजूर, घी, पनीर का मलीदा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खिलाया, जिसका मुफस्सल तज़किरा जंग खैबर में गुजर चुका है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर बहुत ही ख़ुसूसी तवज्जो और इंतहाई करीमाना अनायत फरमाते थे और इस कदर उनका ख्याल रखते थे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर गैरत सवार हो जाया करती थी। मनकूल है कि एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में ये कह दिया कि वो तो पस्ता कद है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, तूने ऐसी बात कह दी कि अगर तेरे इस कलाम को दरिया में डाल दिया जाए तो दरिया मतगीर हो जाएगा, यानी यह गिब्बत है जो बहुत ही गंदी बात है। इसी तरह एक मरतबा एक सफ़र में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ऊँट ज़ख्मी हो गया और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक फाजिल ऊँट था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ज़ैनब, तुम अपना ऊँट सफ़िया को दे दो। हज़रत ज़ैनब ने तैश में आकर कह दिया कि मैं इस यहूदिया को अपनी कोई चीज़ नहीं दूंगी। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इस कदर खफा हो गए कि 2-3 माह तक उनके बिस्तर पर आपने कदम नहीं रखा। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रही हैं। आपने रोने का सबब पूछा तो उन्होंने कहा
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں دربار رسالت میں تم سے بہت زیادہ عزت دار ہیں، کیونکہ ہمارا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفیہ، تم نے ان دونوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیوں کر ہو سکتی ہو؟ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چاچا ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ انہوں نے 10 حدیثیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری مسلم دونوں کتابوں میں ہے اور باقی 9 حدیثیں دوسری کتابوں میں درج ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے۔ وقتی کا قول ہے کہ 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ 52 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بوقت رحالت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ یہ بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔